Good evening to all of you. Good evening. Welcome to the Unacademy. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform of online education. So let's take the advantage of this experience. My name is Manish Kumar Shivare. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. I have 9 years of teaching experience, especially in thermal engineering. I am also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018. And I have done my MTech from NIT Airport in 2011 in computational fluid dynamics and heat transfer. Two times I scored GATE in 2009 and in 2014. This is my profile ID unacademy.com/@mkshivar. This is app icon of Unacademy Learning app. So download this app from your Apple Store and Play Store and you'll get free live classes. Yes, free live special classes. And एक दो नहीं, lots of free special classes are there. So take the advantage of this free session and start your preparation. As you are seeing here, daily live classes are there. So you can also chat with your educator. इससे engagement better होगा and आपके doubts जो है सारे clear रहेंगे. And you can also participate in poll, live test and quizzes. Important role है इसका. Because suppose that आपको लगता है कि आपने किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है and now you will perform with the 100% efficiency on final exam. So I'll suggest कि आपको सबसे पहले किस पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस पे आपको सेल्फ इवेलुएट करना चाहिए. Here you will find some weak points, weakness, mistakes, so that you can improve yourself within a time period. Okay. Structure courses mean that all subjects will be complete as per given syllabus, but sequence of subject will be like this. Initially their basic subjects will be covered and after that application and then advanced, so that concepts will be clear, very clear. Okay, कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा and reasons also be clear. Unlimited access on a single subscription, you can access unlimited video, unlimited educator. You can access anywhere, anytime, n number of times. Okay, now this is the subscription price. There are two category. First one is iconic and second one is plus. तो फर्स्ट वन इज प्लस जो है आपका, इसका फी स्ट्रक्चर है आपका कुछ ऐसा जैसा कि यहाँ शो हो रहा है. फॉर 12 month 30,250, 18 month 38,500, 24 month आपका 44,000. ऑल फीस इंक्लूडेड विथ टैक्स. सब कुछ में टैक्स इंक्लूड है. And if you are using this code MANEESH, you are using this code. अगर आपने ये कोड यूज किया है तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. तो 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है. क्लियर है? ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन, किसी भी सब्सक्रिप्शन में. और आफ्टर 10% डिस्काउंट फी स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस एज शोइंग हियर. Now this is the fee for iconic subscription. There are only two category in iconic subscription. First one is for 12 month मतलब एक साल, and second one is for 24 month मतलब 2 साल. एक साल की फीस आपको 45,000 and 2 year subscription there is fees 60,000, 60,000 रुपए. And if you are using this code, कौन सा कोड, प्रोमो कोड like MANEESH, अगर आपने ये कोड यूज किया हुआ है, again you will get 10% of discount. Okay, and remember this thing कि after 10% discount जो फी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा 40,500, 54,000, all tax included. सब जगह टैक्स इंक्लूड है आपका. रिमेंबर दिस पॉइंट.
Now come to this point ki what is the basic difference between Plus and Iconic. So let's first see what you are getting on Plus subscription. India's best educators are here. Okay, interactive live classes are here. Great. Structure courses and PDF also available for you. Live test and quizzes. So lots of things are here. And in Iconic, you are getting the same features what you get in Plus, and there are some additional also. First one is personal coach. One of the best features. One of the best features. मतलब पर्सनल कोच में क्या होने वाला है आपको someone will be there who will always for you will always follow you at every point. Yes, someone will be there who will guide you, who will counsel you, जो आपकी हर समय पे आपके साथ रहेगा। मतलब कभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कभी आपको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन है आपको, एवरी एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट हियर इन दैट। For subscription time period, someone will be there who will counsel you always. Okay? Personalized test analysis, individually test analysis होने वाला है. Study planner, mean that someone will be there who will guide you, who will act as a senior, who will act as a guardian. ठीक है ना? How to do, what to do, what to not to do. Okay? सारी चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है, हर तरीके का गाइडेंस। प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल भी प्रिपेयर होके मिलने वाला है। तो आइकॉनिक में जो आपके फीचर्स हैं ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, साइकोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ RAC। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय साइकोमेट्री? Psychometry is the branch of refrigeration or science where we discuss about the property of air and moisture. Is the branch of science where we study about the property of the dry air and moist air or pure air, whatever you can understand. What is the difference between dry and pure air? Listen me, इसका एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये साइकोमेट्री इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसके एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आई मीन वास्ट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है। एंड हियर वी डील विद द स्टडी ऑफ प्योर ड्राई एयर और मॉइस्चर। क्लियर है? नाउ व्हाट इज प्योर एयर? रिमेंबर दिस पॉइंट, प्योर एयर होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, SO2, कई सारी गैसेस एटसेट्रा। ओके, एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या लेके चलते हैं? 28.96। क्या आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लेके चलते हैं? अगर हम बात करें इसके गैस कांस्टेंट की, तो गैस कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो PV इज इक्वल टू हम इक्वेशन लिखते हैं MRT। यहाँ पे जो R होता है इसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि R और एयर बताना है आपको, तो आप बोलेंगे 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू है और मॉलिक्यूलर वेट 28.96। इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। रिमेंबर दिस पॉइंट। कई लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ऐसे गलत है। अगर आप यहीं पे H2O की मतलब वेपर का निकालेंगे तो आप बोलेंगे 8.314 डिविजिबल बाई H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
वो होता है 18। इसकी वैल्यू जो अप्रोक्स आएगी आप देखेंगे 0.46 समथिंग आ रही है। एंड लेट मी कैलकुलेट 8.314 डिविजिबल बाई 18, तो देखो इसकी वैल्यू 0.4618 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अभी आप बोलोगे सर ऐसी वैल्यू तो हमने कभी यूज़ नहीं की है। सो अगर आपने नहीं यूज़ की है तो गुड लक है। अगर आपसे हमेशा एयर के बारे में पूछा गया, अगर एयर के बारे में किसी भी गैस के लिए आपने ये वैल्यू यूज़ की है तो इसका मतलब आपने मिस्टेक की हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। एंड व्हाट डज इट मीन बाय प्योर ड्राई एयर? प्योर एयर, प्योर एयर इज दिस एयर, बट प्योर ड्राई एयर इज डिफरेंट थिंग। प्योर ड्राई एयर इज डिफरेंट थिंग। अगर हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ प्योर एयर, प्लस सुपर हीटेड स्टीम, तो is also called as ड्राई एयर, है ना। ये जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 है, आई मीन प्योर ड्राई एयर है, प्लस इसमें वाटर वेपर भी है। अगर किसी को डाउट है ये वाटर वेपर है या नहीं है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर वाटर वेपर है ये सुपर हीटेड स्टेट में, क्योंकि अगर ये वेट वेपर फेज में होता तो ये गीला होता, वेट होता। जैसे हम कई बार बोलते हैं आपका कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है मतलब वेदर में आपका वाटर पार्टिकल ज़्यादा हो रहा है। अगर आप बोलते हैं वेदर ड्राई है, वेदर ड्राई है, जैसे आप विंटर में देखते हो आपकी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वेदर ड्राई है, वेदर में वाटर पार्टिकल कम है। क्लियर है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें वाटर पार्टिकल है ही नहीं, देखो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाओ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के सरफेस पे सपोज दैट आपने कोल्ड ड्रिंक की वाटर की बोतल लाए, ठीक है ना, और आपने देखा कि इसके जो सरफेस पे, इसके सरफेस पे आप देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे सरफेस पे वाटर कंडेंस होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सरफेस पे वाटर कंडेंस होना स्टार्ट होता है। ये वाटर एक्चुअली कहाँ से आया? इसका मतलब ये जो सराउंडिंग था, सराउंडिंग में कुछ आपको वाटर वेपर पार्टिकल था, वही तो कंडेंस हुआ। ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से के अंदर से वाटर आ गया बाहर, क्लोज सिस्टम है, वाटर तो बाहर आएगा नहीं। इसका मतलब जो सराउंडिंग में एयर है उसमें वाटर वेपर पार्टिकल अवेलेबल है, वो आपका कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया, कंडेंस हो गया। तो देखो मॉइस्ट एयर क्या होता है एक्चुअली, इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, ठीक है ना। इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, हम आगे जब भी डिस्कस करेंगे अगर हम बोलेंगे ड्राई एयर वो या मॉइस्ट एयर, यहाँ पे जो वाटर वेपर है ये आपका सुपर हीटेड फॉर्म में होगा, सुपर हीटेड फॉर्म में। क्लियर है। यहाँ पे हम जितनी बात करेंगे वो सुपर हीटेड स्टीम या सुपर हीटेड फॉर्म बोल दो, सुपर हीटेड स्टीम लिख दो, क्योंकि वाटर को सुपर हीटेड अगर है तो हम क्या बोल देते हैं, क्लियर है। ये आपका मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर जो है वहां पे एक्चुअली आपका क्या है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है। नाउ कम टू द सैचुरेटेड एयर, इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर when the maximum amount of water vapor present in it। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट आपने एक सिस्टम लिया, सैंपल लिया, सिस्टम सैंपल में आपको क्या था, एयर था, ऐसा है ड्राई एयर, ठीक है ना। अब ड्राई एयर में आपने वाटर मिक्स किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप वाटर मिक्स करते रहो और वाटर ऐड होता रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप वाटर ऐड करते रहो और वाटर ऐड होता रहे? ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं बस अब इससे ज़्यादा वाटर डिफ्यूज नहीं हो सकता टू द एयर। क्लियर है। देखो क्या होता है एक्चुअली कि जो एयर होती है, एयर से, जैसे आप कूलर है, कूलर में आप क्या करते हो, कूलर में आप एयर पास कराते हो, वाटर क्या करते हो उसमें स्प्रे कराते हो, तो वो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वाटर पहले ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है,
फिर वो एयर के जो पार्टिकल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एयर के पार्टिकल से वाटर वेपर हीट लेता है, वाटर पार्टिकल जो ड्रिपलेट फॉर्म में थे वो हीट लेता है और इवेपरेट होकर मिक्स हो जाता है एयर में। तो अभी इससे क्या होता है, एयर का टेम्परेचर पहली बात तो डिक्रीज करता है, दूसरी बात एयर में वाटर वेपर की मात्रा, वाटर वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी वाटर वेपर मिक्स कर दें, ठीक है ना, कहीं ना कोई मैक्सिमम कंडीशन होगी। तो कंडीशन हम अभी आगे देखेंगे। पहले ये देखो कि मॉइस्ट सैचुरेटेड एयर क्या होती है। सैचुरेटेड एयर कि अगर आपको सपोज दैट प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है एयर के लिए, तो उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आप ऐड कर सकते हैं, आपने ऐड कर दिया। जितना अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हैज बीन डिफ्यूज्ड इनटू द एयर, सो दैट इट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड एयर। क्लियर है? इफ maximum amount of water vapor has been diffused to given air, then it is called as saturated air. Okay, तो यही लिखा हुआ है, it is the mixture of dry air and water vapor when maximum amount of water present in it at given pressure and temperature. Remember this point. डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, यहाँ आपकी चांसेस ज्यादा है भूलने के, तो डोंट फॉरगेट, ये भूलना नहीं है। लॉज के साथ क्लॉज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये हमारा क्या है, दिस इज माई प्रोफाइल आईडी, इफ पॉसिबल देन फॉलो इट। ओके ना, अभी इसके बाद आता है आपका ड्राई डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? आप एक काम करो, पहले ह्यूमिडिटी को देखो। ह्यूमिडिटी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर किलोग्राम, इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर टू। क्लियर है? ह्यूमिडिटी क्या हो गया, मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। सपोज दैट आपने बोला ये रूम का एयर था, हमने 1 किलोग्राम, किलोग्राम बोला, मीटर क्यूब नहीं बोला, वॉल्यूम नहीं, मास बोला, हमने बोला हमने 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर का सैंपल ले लिया। नाउ मेजर द वैल्यू ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर। If we observe the value of mv, then humidity is called as mass of water vapor per kilogram of dry air, और इसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम ऑफ, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। यूनिट, यूनिट हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, या और बोलते हैं ग्राम, ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? ये चलता है आपका ह्यूमिडिटी में। क्लियर है? हमने क्या बोला, मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बोलते हैं मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर टू द गिवन एयर, टू द गिवन एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर per kilogram of dry air at saturated air, in saturated air at given pressure and temperature, at given pressure and temperature। फिर ध्यान से सुनो, मास ऑफ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कर रहे हैं मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एग्जाम्पल समझो, सपोज दैट आपने बोला कि ये रूम की एयर है, इस रूम की 1 किलोग्राम ऑफ एयर में आपने बोला कि 20 ग्राम मास ऑफ वाटर वेपर है। ठीक है, 20 ग्राम वाटर वेपर हो गया। अगर आपसे बोला गया कि इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एयर में कितना मास होगा, आपने कैलकुलेट किया, डिफरेंट मेथड है अभी कैलकुलेट करने का, पता चल जाएगा। आपने कैलकुलेट किया और आपने बताया कि सैचुरेटेड एयर, अगर इसी प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर रूम की एयर सैचुरेटेड एयर होती तो वहां पे जो मास ऑफ वाटर वेपर था वो था आपका 40 ग्राम। तो आपने बोला डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, तो आपने बोला एक्चुअल एयर में जो मास ऑफ वाटर वेपर है वो है 10 ग्राम।
और सैचुरेटेड होता तो वो होता 40। यहाँ पे 10/40 करके आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 0.25। क्लियर है? यहाँ पे ये यूनिट लेस होता है, ध्यान देना। क्लियर है? यहाँ पे जो होता है वो यूनिट लेस होता है। तो समझ गए, मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। रिमेंबर दिस पॉइंट, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ये आपका नहीं है तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका फर्स्ट आ गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आप बात कर रहे हैं, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। देखो ह्यूमिडिटी था हमारा मास ऑफ वाटर वेपर इन पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, यहाँ पे है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम में बोल रहे हैं, यहाँ पे मतलब पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है ना, वहां पर यूनिट मास चल रहा था। क्लियर है? तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और ये आ गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपका क्या आ गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? देखो जैसे आपका आपने लिखा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो एक चीज और, यहाँ पे जो आपका ये ह्यूमिडिटी है इसी को हम बोलते हैं क्या, और करके बोल दो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, या इसी को बोल देते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है ना? क्लियर है ना? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच भी लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन एयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। मतलब इन्होंने बोला मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर टू mass of water vapor in 1 meter cube of saturated air, saturated air at given pressure and temperature, that's it। प्रेशर एंड टेम्परेचर फिर से आपका सेम हो गया, तो ये आपका आ गया। क्लियर है? तो आपने जो बोला डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वहां पे जो आपने रेशियो लिया वो लिया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर का। यहाँ पे आपने लिया मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लेना आप, क्योंकि ये जो टॉपिक है और ये जो डेफिनेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। ओके, नाउ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको आप लिख देते हो डी, लिख देते हो डी बी टी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर या टेम्परेचर डी बी। ठीक है ना, इस तरीके से, या और भी लिख देते हो, सिर्फ डी भर लिख देते हो। क्लियर? जैसा भी देख लेना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर which is measured by a thermometer if its bulb is not affected by moisture content। Clear? It is measured by a thermometer, it is measured by a thermometer, it is measured by a thermometer when its bulb is not affected by the moisture। Okay, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर और DWB, it is the temperature which is measured by a thermometer when its bulb is covered with wet cloth। मतलब अगर सपोज दैट आपका ये थर्मोमीटर है, अब आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सब
आपने मेजर किया होगा कि ये आपका सपोज दैट थर्मामीटर है। हम्म। अब थर्मामीटर में ये जो बल्ब होता है, अगर हम इसको एक वेट क्लॉथ से क्या कर दे, कवर्ड कर दे, देखो क्या होता है। सपोज दैट आपने देखा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग टेम्परेचर था। 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपके किसी क्लॉथ का, सपोज दैट टवल का टेम्परेचर 35, वाटर का टेम्परेचर 35। लेकिन जैसे ही आपने वाटर पे डिप किया उस टवल को, किस क्लॉथ को, और आपने उसको निचोड़ निचोड़ के जैसे ही देखा, टेम्परेचर अगर मेजर करोगे तो वो हमेशा 35 से नीचे आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो क्लॉथ है, उसका जो सरफेस है, सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है, उसके पास फ्री सरफेस बहुत होता है। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर जो सराउंडिंग एयर है वो कैसी है, सैचुरेटेड एयर नहीं है। इसका मतलब सराउंडिंग एयर के पास इन्फिनिटी कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर पार्टिकल। वो क्या करेगा, वाटर वेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर वेपर पार्टिकल क्या करेंगे, ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, वो वाटर पार्टिकल अनदर वाटर पार्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपरेट होके मिक्स हो जाएंगे टू द एयर। तो इसलिए जो जिस पार्टिकल से हीट लेके चला गया उस पार्टिकल का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ऐसे आपका सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली एग्जांपल है कि जो आपका वाटर कूलर होता है जो आप गर्मियों में यूज करते हैं, वाटर कूलर पानी वाला नहीं। तो आपका ये जो कूलर होता है जिसमें आप वाटर स्प्रे कराते हो और ठंडी हवा यूज मतलब फील करते हो, उसमें जो वाटर होता है, अगर आप देखते हैं कि गाँव वाँव में जहाँ पे लाइट नहीं आती थी पुराने टाइम पे, या जिनके यहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, ठीक है ना, वो लोग क्या करते थे कि कूलर का जो पानी होता है उस पर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सराउंडिंग टेम्परेचर सपोज दैट 45 है। अभी आपने जब कूलर चलाया तो वो वाटर रिसर्कुलेट होता है, और सिर्फ इसी प्रोसेस की वजह से कि वो जो वाटर पार्टिकल है, एक वाटर पार्टिकल दूसरे वाटर पार्टिकल से हीट लेके इवेपरेट होके एयर पे मिक्स हो जाता है, तो आपका जो बचा हुआ वाटर पार्टिकल उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि बहुत नीचे तक चला जाएगा, उसका भी एक कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट है वही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो चाहे आपका वेट क्लॉथ हो, चाहे आपका वाटर सर्कुलेशन हो, ठीक है ना, मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो वेट बेल्ट टेम्परेचर के बराबर होगा। क्लियर? तो आप बोलते हैं कि ये थर्मोमीटर में हमने वेट क्लॉथ मेजर कराया, और इसके बाद हम क्या करें, कंटिन्यूअसली रोटेट कराते हैं। ये कहाँ मेजर कराते हैं, इसका नाम होता है स्लिंग साइकोमीटर। स्लिंग साइकोमीटर, ठीक है ना। स्लिंग साइकोमीटर ये थर्मोमीटर का नाम है। इस थर्मोमीटर से आप वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके बल्ब में आप वेट क्लॉथ कवर करते हैं और इसको कंटिन्यूअसली रोटेट कराते हैं। हम रोटेट इसलिए कराते हैं ताकि इसका टेम्परेचर जो जितना डिक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो जाए। आप ऑब्जर्व करना, जैसे आप वेट क्लॉथ कराते हो, सपोज दैट वाटर का टेम्परेचर 35, सराउंडिंग टेम्परेचर 35, जैसे वेट क्लॉथ से कवर कराते हो तो आप देखोगे टेम्परेचर 34 आ गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना। जैसे आप उसे और रोटेट कराते हो, इस तरीके से घुमाते हो, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सपोज दैट 30 डिग्री तक चला गया। फिर उसके बाद आप रोटेट कराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मिनिमम टेम्परेचर रीड हो गया वही आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। क्लियर है? नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली अगर हम बात करें पीएच डायग्राम की, पीएच डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में ध्यान से समझना है एक एक चीज, है ना। आपने बोला कि ये वाटर वेपर के लिए था, टीएच डायग्राम किसके लिए, वाटर वेपर के लिए। इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर दे, क्योंकि सराउंडिंग एयर का तो प्रेशर आपका फिक्स है, तो आपने बोला सराउंडिंग एयर का प्रेशर फिक्स है, आपने ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये आपका जो प्रेशर लाइन है सराउंडिंग प्रेशर का नहीं है, फिर ये किसका प्रेशर है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल। तो इसका मतलब अगर एयर में हम बोल रहे हैं, जो एयर है उसमें बोल रहे हैं हम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O है, CO2 है, ऐसे है।
इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर हम H2O को बना रहे हैं, वाटर वेपर को बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा कौन सा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ होगा। इसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। क्लियर है। अब आते हैं, ये तो पार्शियल प्रेशर ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम आते हैं कि कंडीशन पे, सपोज दैट ये जो रूम की एयर है, इस रूम के एयर पे आपने बोला कि भैया ये जो रूम की एयर है, हमें पता है यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड फेज में, या आप बोल दो जो रूम पे जो वाटर वेपर है ये सुपर हीटेड फेज में है, तो आपने पॉइंट मार्क कर लिया, ये रूम का कंडीशन .1। अभी आपने क्या किया, इस रूम के एयर को ठंडा करना स्टार्ट किया, रूम के एयर को ठंडा करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रेशर हमने चेंज नहीं किया। जैसे ही ठंडा स्टार्ट करना है, चालू कर देंगे चालू कर देंगे चालू कर देंगे, तो यहाँ तक आएंगे आप। जैसे ही इधर तक आए, आपने बोला ये जो टेम्परेचर है, यहाँ पे अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। भाई आप यहाँ से ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते ठंडा करते ठंडा करते यहाँ तक आया। इसके बाद अगर आपने और कूलिंग प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर आया, यही आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। इसको हम DPV बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर is that temperature where water vapor begins to condense, या dew point temperature is the saturation temperature corresponding to the partial pressure of water vapor। क्लियर है, और अच्छे से समझ लो। अब बताओ, ये जो कोल्ड ड्रिंक की सरफेस पे वाटर कंडेंस होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर इस रूम पे अवेलेबल एयर, इस रूम पे अवेलेबल H2O के पार्शियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, मतलब इस रूम का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, उससे कम है कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर। इसीलिए उस कोल्ड ड्रिंक के सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर वेपर पार्टिकल आते हैं, इट बिगिंस टू कंडेंस, इट बिगिंस टू कंडेंस, इसीलिए वो कंडेंस हो जाता है। क्लियर है। तो आपका अगर वाटर बॉटल या कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का टेम्परेचर रूम की एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर रहेगा, तो कभी भी उसके सरफेस पे कंडेंसेशन नहीं होगा। अगर उसका टेम्परेचर रूम की एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, तो हमेशा कंडेंसेशन होगा, सरफेस वेट होगी। क्लियर है, क्लियर होगा, आई थिंक सो। नाउ अब कुछ दो तीन फॉर्मूले लिखते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं और न्यूमेरिकल उससे जरूर आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, सपोज दैट आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यू नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सॉरी, इज द मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, तो आप बोलोगे MW/MA। और जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। 0.622 इंटू PV, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, अपॉन PB बैरोमेट्रिक प्रेशर या टोटल प्रेशर, माइनस PV, ये आपको फॉर्मूला है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना, PV is the partial pressure of water vapor and PB is the barometric pressure, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने क्या बताया था, म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड एयर, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर। बस
अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0.622 पीवी ओवर पीबी माइनस पीवी अपॉन 0.622 पी, अब यहाँ पे सैचुरेटेड लिख दो अपॉन पीवी टोटल माइनस रेटेड। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अब दोनों बताएंगे। कई बार आपको इन सभी फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कई बार आपको इन्हीं फॉर्मूलों की ही वजह से आपका होगा। तो अगर कांस्टेंट हो गया तो आपने फिर कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पीवी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू, मतलब सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर, माइनस पीबी बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस पीडब्ल्यू इंटू टी डी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन 1544 माइनस 1.4 टी डब्ल्यू। यहाँ पे देख लो आप, जो पी डब्ल्यू हमने लिखाया है, इट इज द सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू, saturation pressure corresponding to saturation pressure corresponding to wet bulb temperature। क्लियर है? ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। और ये फॉर्मूला जितनी जल्दी याद कर ले उतना बेहतर है। मैं फिर से बता देता हूँ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी डब्ल्यू माइनस पी बी माइनस पी डब्ल्यू इंटू टी डी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन, ये आप थोड़ा सा याद रखो, 1.4 1544 माइनस 1.44, थोड़ा सा एक रिदम सा आता है ना, 1544 माइनस 1.44 इंटू टी डब्ल्यू। बस इतना ही जुगाड़ है इसमें। ओके, ना वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को ही कहते हैं आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसी को ही क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो आप, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या था, वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। क्लियर है? और इसकी जो वैल्यू आती है वेपर डेंसिटी रो वी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंटू पी बी माइनस पी अपॉन आर ए इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर टी डी। लेकिन देखो, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो आपका टी डी है, ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस 273.1। क्लियर है? ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आर ए ये आपका 0.287 है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ इंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर, मतलब अब मॉइस्चर मतलब ऐसा नहीं है कि आपका लिक्विड वाटर है, नहीं, ड्राई है सब। यहाँ पे इंथैल्पी की बात करेंगे तो ये भी आपको फॉर्मूला याद ही करना है, 1.022। देखो ये सब प्रैक्टिस करोगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये सब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, इनटू आपका W मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू HFG। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपका वैल्यू है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। कंडेंसेशन कहाँ होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। तो लेटेंट हीट कहाँ चाहिए? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, प्लस 2.3 आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड।
यहाँ पे आपका क्या है, इन डिग्री सेंटीग्रेड आप करके लिख लो, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहे, ताकि आगे जाके ये जो आपकी वैल्यू है इन डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है, इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू इन केल्विन, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट साइकोमेट्रिक टर्म थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये सारे टर्म, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको छोड़ के चलना है, ठीक है ना। अगर आपने इनमें से किसी भी को भी छोड़ दिया, देखो हमने सिर्फ 3 फार्मूले लगाए आपको जो याद करने हैं, 3-4 फार्मूले ये आपको याद करने हैं, आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और एज सुन एज पॉसिबल, जैसे जितने जल्दी याद कर लेंगे उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं है। हाँ, तो अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज। A moist air sample dry bulb temperature is 30, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन्होंने बोला 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्टली इसी में कर रहे हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इज इक्वल टू 11.5 ग्राम वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। Assume molecular weight of air 28.93 with the saturation pressure of water at saturation pressure of water, मतलब ये आपकी बात कर रहे हैं पीएस की 4.24 किलो पास्कल, क्लियर। द टोटल प्रेशर इज पीबी इन्होंने दिया हुआ है 90 किलो पास्कल। देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा क्या था, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर, मतलब इज इक्वल टू, अगर हम उसे लिखेंगे तो वो आता है पीवी ओवर पीएस। तो आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया है, रिमेंबर दिस पॉइंट, आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया है, सॉल्व करना है आपने। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया है तो प्रोसीजर हम बताते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया, पीएस आपको गिवन है, पीवी आपको निकालना है। पीवी के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो पीवी इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर वाला, पीवी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर को कोई जिक्र नहीं है। दूसरा पीवी का इक्वेशन है आप जो यहाँ पे यूज होने वाला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.66, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.66 नहीं 0.622 होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.622 पी वी ओवर पी बी माइनस पी वी। अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू की वैल्यू पता है कितनी है 11.5, पीबी की वैल्यू पता है पीबी, पीबी की वैल्यू ये 20, तो आपका क्या वैल्यू आ नहीं जाएगा, पीवी आ जाएगा, आपका वैल्यू पीवी आ जाएगा, क्लियर है। हम्म, 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 ठीक है, यहां से आपका पीवी का वैल्यू आ जाएगा, अभी हमें याद नहीं है पीवी का वैल्यू क्या आएगा, आपने सॉल्व करना है, पीवी का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ इक्वेशन रखना है, आर एच इज इक्वल टू, क्लियर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 0.622, पीवी निकालना है, पीवी गिवन है, सब कुछ गिवन है। यहाँ से आपको जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, पहला न्यूमेरिकल इसलिए बता देते
38.385। इसी को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 38.5%। यहाँ पे आपका बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो आप इसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बिना सॉल्व करे आप आगे मत बढ़ो। प्रैक्टिस जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, एग्जाम आपको देना है ना। एक मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको मौका ढूंढना चाहिए। हैबिट्स ये करो, जिस दिन आपकी ये हैबिट होगी ना, एग्जाम बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा। मतलब अच्छी रैंक बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कितना ग्रोथ कर चुके हो, कितना अचीव कर लोगे। फिर क्या करना है, आपने हैबिट्स ये डालने हैं कि आपको मौका चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, कलम पेन चलाने के लिए। क्लियर है? दिमाग चलाने के लिए मौका ढूंढो, मौका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज करो, आंसर डेफिनेटली बी पार्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, ऑल दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ दिमाग चलाना है ना। फॉर एयर एट गिवन टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड। इन्होंने बोला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी ओवर पीएस। ये आप इंक्रीज कर रहे हो। द वेट बल्ब टेम्परेचर and specific enthalpy increases. The wet bulb temperature and specific enthalpy increases। जैसे में अगर आपने बोला पीवी इंक्रीज कर रहा, तो पीवी इंक्रीज कर रहा है तो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। और अगर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो स्पेसिफिक एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। मतलब ए पार्ट आपका सही है। द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एंथैल्पी गलत। द वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी डिक्रीज। जब वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी, आपने क्या बोला, और एयर एट गिवन टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस आइसोथर्मली। तो आप बोल रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रिलेटिव स्पेसिफिक एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही। इसमें बोला है वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी डिक्रीज, गलत। द वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज स्पेसिफिक एंथैल्पी इंक्रीज, गलत। दोनों चीजें इंक्रीज करेंगे आपकी, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नो 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 नो, इसमें क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या बताया था, इट इज द पार्शियल, इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। इसकी वैल्यू कहाँ आपको मिलेगी, स्टीम टेबल में मिलेगी। इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, स्टीम टेबल में। पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर स्टीम टेबल में देखेंगे, वही आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which condensation begins when the air is cooled at constant pressure। C part is the correct answer। हमने ये बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर, और कौन सा प्रेशर, ये जो होता है ये होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इसको हमने पीवी से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा, अ रूम कंटेन 35 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर इन इतना। देखो पहली लाइन क्या करा, अ रूम कंटेन 35 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर एंड 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर। द टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर इज इतना इतना, गिवन दैट सैचुरेशन प्रेशर फॉर एयर इज इतना, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, इन्होंने स्पेशली डब्ल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, अब निकालनी है हमें। तो इन्होंने बोला है कि जो डब्ल्यू है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो क्या हो जाएगा,
मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, तो इन्होंने बोला 35 किलोग्राम में जो मास ऑफ वाटर वेपर है वो 0.5 है। 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 35, ये आपका आ गया किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, यहां से आपका डब्ल्यू आ गया। और डब्ल्यू इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी अपॉन पीबी माइनस पीवी इंटू 0.622, है ना। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका पीवी आ जाएगा, पीवी आ गया। पी एस आपका गिवन है, कितना है ये देखो, द सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर कितना है 3.17 किलो पास्कल। और क्या गिवन है, ड्राई टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और टोटल प्रेशर भी गिवन है, टोटल प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल। तो यहाँ से आपका पीवी आ गया, पीवी आ गया, पीएस आ गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा है, तो ये क्या बताया था, पीवी ऊपर पीएस। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.71 अप्रॉक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 71%। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल में यही दो तीन चीजें आती हैं जो हमने बताई, ठीक है ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल में यही दो तीन चीजें आती हैं। एक तो मैंने बार बार बोला कि ये जो आपका है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बाकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पीवी का मतलब क्या है, पीएस का मतलब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। एक चीज और बता देते हैं, शायद अभी नहीं बताई, रिलेशन। आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है और गिवन एयर, वो हमेशा कैसा होता है, सबसे ज्यादा या इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है, अगर इक्वल टू सिर्फ तब के लिए होगा जब आपका सैचुरेटेड होगा, अदरवाइज हमेशा ये रिलेशन आता है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो आपने करने हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी। लेट्स क्रैक गेट एंड एस एग्जाम विद दिस प्लेटफॉर्म। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, and hit the bell icon button for frequently notification, okay. Use this code to take subscription, and please make a comment on comment section box, okay. And this is my profile id on Unacademy app. So thank you so much, thanks again.